Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Zivya Vadwani and today we'll be studying the one shot revision of ISC Prism, means all the stories that will be coming in your ISC 2026 examinations. Okay, so we'll be just having a go through of all the key points, the events that have taken place in all the stories, plus the part of characters and theme we'll be doing in a separate video, because ये बहुत ही मतलब if you will miss themes that will also be a trouble for you, and if you are going to miss the key points जो आपके events हैं एक एक, वो अगर उसको भी आप miss कर दोगे then also it will be a trouble. तो hence we'll be taking key themes and characters in a separate part. ठीक, तो the first one is Atithi, that is by Rabindranath Tagore, in which Tarapada, the protagonist of the story, he joins Matilal Babu or Motilal Babu, which whatever is given in the textbook, क्योंकि different places पे different point is being given. ठीक, तो on their boat journey, तो he is Motilal Babu is the zamidar of Kathalya, that is a place, a traveling home, and he is traveling to his home with his family. एक बोट पर ये सब जा रहे होते हैं और जब उनको एक यंग ब्राह्मण बॉय हुज नेम वॉज तारापदा वॉज दे मेट. ठीक, तारापदा इज तारापदा इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ देम द स्टोरी. तो ही तारापदा, अच्छा इसके बारे में इतना तो बेसिक सा मतलब अंडरस्टैंडिंग यू वुड बी हैविंग ऑफ इट कि ही इज़ अ वॉन्डरलस्ट. वो एक जगह पर नहीं रुकता है और उसको मतलब नेचर उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, म्यूज़िक उसको बहुत अट्रैक्ट करता है इंस्टेड ऑफ द पीपल. ओके, who is not more than 15-16 years old. He asked Motilal Babu if he could drop him to Nandigram on the way. Means कथालिया वो लोग जा रहे थे तो उसके बीच में ही एक प्लेस पड़ती है नंदीग्राम. तो if he was asking मोतीलाल बाबू कि अगर आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे थ्रू बोट. ठीक, मोतीलाल consents and the fair skinned boy described as beautiful to look at. ठीक है, ये उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. तो he was termed as beautiful to look at. With a smile and large eyes full of grace, he joins them on the boat. फिर तारापदा impresses Motilal's family with his skills in cooking, taking over the task from the servant and preparing the meal with practiced skill. तो ये जितने भी activities थी ये कौन करता था? ये तारापदा करता था. ठीक, and the family was very much impressed with it. Then he takes a dip in the river, changes into clean white garment and steps back into the boat. Motilal's wife Annapurna is tenderly attracted to the boy and wonders about his background. She is the wife of Motilal Babu and she was very much, मतलब वो एक होता है ना ममता वाला मन, तो वैसे she was very much attracted towards the boy and she was wondering कि उसके background में कौन कौन है. अब next we will study about कि तारापदा's mysterious past and his detached nature. Okay, Tarapada, that we will study right now, that is Annapurna learns about Tarapada had run away from his home. तारापदा के बारे में ये चीज़ उसको पता चली अन्नपूर्णा को कि वो अपने रूम से, अपने घर से वो भाग चुका है on his own volition at the age of 7 or 8, despite being the darling of his family. भले ही वो अपनी फैमिली का बहुत प्यारा हो, still he had run away. She asked about the mother. उसने पूछा उससे कि मतलब what about your family and all. तो बोलता है कि she has 4 more sons and 3 daughters. Means obviously कि she has more people to take care of. तो to Annapurna's pain, तो अन्नपूर्णा को ये चीज़ बहुत बुरी लगी सुन के. Tarapada's life is brief, his life story is brief, but he described it as complete original with love for music and varied nature akin to a young fawn. Means जैसे कि एक young fawn होता है who loves music and who has a love for nature, who roams about here and there. Similarly is his mind also the same. The boy's passion for music had first lured from home and he had joined various performance troops. तो ये भी उसके बारे में एक चीज़ थी कि his love for his music, he had joined various performance troops जैसे कि यात्रा, the Kali singers and the gymnasts. Okay. Then next is, however, despite these connections, his nature remains unbound to any kind of habit or custom.
मीन्स उसको आप कहीं पर रोक करके बांध करके नहीं रख सकते. एज ही स्विम्स इन द मर्की वाटर ऑफ द वर्ल्ड विथ प्योर वाइट विंग्स लाइक अ सॉन. तो ये उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि एक सॉन होता है हु लिव्स इन द मर्की वाटर ऑफ द वर्ल्ड विथ हिज प्योर वाइट विंग्स अनटच्ड बाय एनी वन. ठीक, unstopped by anyone. Similarly, Tarapada also. Tarapada's integration into the family and Charu's jealousy. तो then बोट जर्नी जब कंटिन्यू करती है, दे आर स्टिल ऑन द बोट, ही बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इन टू मोतीलाल्स फैमिली, हेल्पिंग विद टास्क एंड कैप्टिवेटिंग हिम विद हिज म्यूजिकल टैलेंट. मतलब कि वो उन सारी टास्क में हेल्प भी करता है और सबको अपने म्यूजिकल टैलेंट से इम्प्रेस भी कर देता है. ही एक्सपर्टली जॉइन्स इन एवरीथिंग. वो हर चीज़ वहाँ पर करता है, चाहे वो कुकिंग हो, शॉपिंग टू सेलिंग द बोट हो. His accomplishments impress everyone. Everything he can do. ठीक. Annapurna longs to feed. Annapurna, the wife, she feels like कि हाँ मुझे उस बच्चे को खाना खिलाना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े देने चाहिए, and scout to him and give, but she cannot discover how to please him. पर वो सारी चीज़ें करती, but still she is not able to understand कि मैं उसको कैसे impress करूँ कि वो जो बच्चा है वो मुझे अपनी मदर जैसे ट्रीट करने लगे. However, Motilal's daughter Charusashi becomes jealous of the attention Tarapada receives. So, and this is also a factual thing that you are supposed to understand. The 9-year-old girl described as willful and obstinate, मतलब वो अपनी मर्जी की करती थी and वो बहुत ढीठ जिद्दी भी थी, begins to concentrate on her volatile feelings and fierce animosity towards Tarapada. उसके अंदर गुस्सा भी था लेकिन she was having a little bit of feelings also inside her. She scowls, pushes her plate away. वो चिल्लाती थी, चीखती थी, अपनी प्लेट को इधर उधर कर देती थी, and objects to everything, refusing to admit that Tarapada has any virtues at all. But she did not accept कि तारापदा के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है. Tarapada's popularity in Kathalya and Charu's fascination. Now she was attracted to Tarapada. After about 10 days, the boat arrived at Kathalya, where Tarapada quickly establishes friendly relations with everyone in the village. He mixes up with people with equal terms, adapting to any situation. मतलब कहते हैं ना बहुत ही मिलनसार लोग होते हैं, तो वैसे ही he was also the same. His reign over the whole village except Charu, मतलब कि हर किसी पर उसका राज था, बस चारू पे नहीं था. Whose hatred he simply cannot win over, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ती रहती थी. Despite Charu's animosity, she is secretly fascinated. भले ही वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हो, लेकिन still she was secretly fascinated for Tarapada, particularly when he baths in the Solan river. मतलब कि जब वो river जिसका water level थोड़ा up हो गया था, उसमें when he used to take bath and sporting his pure body in the swimming display worthy of young water god. तो वो ऐसा दिखता था, okay, like a young water god, and then she was more fascinated towards Tarapada. Then ये जो natural fierceness थी of this fiery black-eyed girl captivates Tarapada, and he makes great efforts to win her round but without success. लेकिन the story unfolds the backdrop of rich descriptions of natural world. मतलब यहाँ पर natural world के भी बहुत सारे सुंदर सुंदर descriptions दिए गए हैं, particularly the innocent yet tumultuous interactions between Tarapada and Charu. ठीक है. और इवेंचुअली इस स्टोरी में लास्ट में क्या होता है कि दे हैड प्लान्ड अ काइंड ऑफ मतलब इसके फर्दर जो भी स्टोरी है दैट इज़ कि ये लोग डिसाइड करते हैं तारापदा के बारे में, उसको उसकी शादी करवाने के लिए चारू से. बट इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, ही रन्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस ऑन द डे ऑफ मैरिज ऑल्सो, एंड द स्टोरी goes like this into an end. ठीक. Now comes Cookie Lady. On his way to see the old neighbor woman, Bernard Searle, that is Bubber, is mocked by classmates completing his paper route. Means जो उसका एक usual route था, उसको जब भी वो जा रहा होता था वहाँ से, and he used to go and meet a lady, old age lady, जहाँ जो उसको impress करके रखती थी, उसको cookies देती थी खाने के लिए. तो he was always mocked by his classmates कि तुम वहाँ पर जा रहे हो. ठीक. तो he comes to the house of that old woman, Mrs. Drew, जो बहुत ही mysterious woman थी. A few moments later, she has prepared milk and cookies for Bernard.
He eats them while Mrs. Drew looks on. She urges him to stay and read the book. वो उसके बाद उसको अर्ज करती है कि तुम रुको, मेरे लिए बुक पढ़ो. Having only his books from school, he begins read from his geography. तो वो अपनी geography book को read करने लगता है. While Bernard is reading, Mrs. Drew reflects on how odd her actions have become. It begins to happen yet again. When now it was some sort of magic that she was taking up. ठीक, while Bernard is talking, Mrs. Drew momentarily becomes youthful because वो क्या कर रही है, वो धीरे धीरे करके उसकी सारी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है और वो सारी एनर्जी से वो खुद she starts becoming youthful. This brief transformation ends. जैसे ही बर्नार्ड, ये जो ब्रीफ ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज टेकिंग प्लेस, वो इट स्टार्ट्स एंडिंग जैसे ही बर्नार्ड उठता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से घर जाना है. ठीक है, ही हैज़ टू गो. मिसेस ड्रू अर्जेस बर्नार्ड टू विजिट अके. तो मिसेस ड्रू कहती है बर्नार्ड से कि तुम यहाँ पर वापस दोबारा आना. फिर when he goes home, his parents talk about how suspicious is that Bernard visits an old neighbor day by day. तो उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ से बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि the lady's house is being visited by my son only every day. So this should not happen. His mother and father tell Bernard that he can visit her only one more time. कि तुम सिर्फ एक आखिरी बार ही उनके पास अब जाओगे, अब again and again you will not go there. Bernard is fine with that, knowing that Mrs. Drew is a strange woman anyway. उसको खुद भी पता है कि हाँ, she's a strange woman and I should not go to that place again and again. Back to the old woman's house. वो फिर से उस old woman के घर पे जाता है, the mysterious lady. ठीक, Bernard is waiting for Mrs. Drew to finish making the cookies. He is waiting कि हाँ वो cookies बनाए और उसके लिए ले करके आए. He informs that this will be his last visit. और उसको वो ये भी बताते हैं कि ये मेरी last visit होगी यहाँ पर because my parents has told him to do so. This time, अब Bernard reads to her, touches his arms. She touches his arms. वो उसके arms को ऐसे touch करती है. She feels Bernard's youngness फॉलोइंग थ्रू हर. मतलब कि वो उसको ऐसे टच करती है एंड उसके बाद बर्नार्ड की जितने भी यंग यूथ था वो सारी एनर्जी जो है वो दैट वाज बीइंग शिफ्टेड टू द लेडी. शी हैज़ चेंज इन टू अ यंगर वर्जन ऑफ हर सेल्फ. शी हैज़ नाउ कम्प्लीटली बिकम द यंगर वर्जन ऑफ हर सेल्फ. ऑन बर्नार्ड्स इंसिस्टेंस she leaves to finish the cookies. Bernard grabs the finished cookies and puts them in his pockets and leave. तो बर्नार्ड की इंसिस्टेंट पे शी लीव्स टू फिनिश द कुकीज़ की ये जितने भी चीज़ें हैं ये बर्नार्ड्स इंसिस्टेंट शी लीव्स टू फिनिश द कुकीज़. ठीक, कि वो वहाँ से जाती है और उसके बाद बर्नार्ड वो कुकीज़ उठाता है अपने पॉकेट्स में रखता है और वहाँ से चलता बनता है. ही डज नॉट सी ऑल्सो मिसेस ड्रू. मिसेस ड्रू एन्जॉयज हर यूथफुल अपीयरेंस एंड बिगिन्स टू प्लानिंग टू गो आउट. वो प्लान करती कि अब मैं ऐसे ही बाहर जाऊँगी. On his way home, now Bernard feels very exhausted and weak, and with the wind he is forced to rest at the lamppost and struggles onward. कि just because कि विंड बहुत ज़्यादा होती है तो ही इज़ फोर्स्ड, वो जो वहाँ पर लैम्प पोस्ट होता है कॉर्नर पे वहाँ पर वो रुकता है. ही स्ट्रगल्स ऑनवर्ड. हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड अबाउट, बट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो हिज फादर ऑब्जर्व्स ओनली अ बंडल ऑफ डेब्रीज ब्लोन बाय द विंड स्ट्राइकिंग. मतलब कि सिर्फ धूल मिट्टी सूखे पत्ते उसको दिखते हैं, उसे बर्नार्ड कहीं नहीं दिखता है. इट जस्ट मीन्स कि वो जितनी भी एनर्जी थी बर्नार्ड की ऑल हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट और वो सिर्फ इवेंचुअली क्या बन जाता है, अ फॉर्म ऑफ डस्ट बन जाता है. ठीक, तो इसमें दो चीज़ें, कुकीज़ दैट कुड सिम्बलाइज दैट इट इज़ सीमिंगली हार्मलेस एंड एंटाइसिंग नेचर ऑफ मिसेस ड्रू, मास्किंग हर ट्रू इंटेंशंस. मतलब उसके जो एविल इंटेंशंस थे वो छुपे हुए थे उसके ये हार्मलेस इंटेंशन से जो कुकीज़ के फॉर्म में वहाँ पर शो किए गए हैं. एंड डस्ट बबर्स रिडक्शन टू डस्ट कुड सिम्बलाइज द इनएविटेबल एंड ऑफ लाइफ. कि ये दिखा रहे कि बबर एनीवे हैड डाइड बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ऑल हिज एनर्जी हैज़ बीन ड्रेन्ड, तो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है. एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफाइंग नेचुरल प्रोसेसेस. मतलब ऑब्वियसली नेचुरली आप तो बूढ़े हो लेकिन आप द कुकी लेडी इज़ ट्राइंग टू गेन हर यूथ थ्रू मैजिक्स एंड वट एवर. ठीक, तो उससे वो क्या हो रहा है यहाँ पर कि शी इज़
टेकिंग ऑल द एनर्जीज, और वो कुदरत के खिलाफ जब आप जाते हो तो दिस इज़ वॉट हैपन्स टू द पर्सन. तो यहाँ पर उस कुकी लेडी को नहीं, बट जो अदर पर्सन है उसको ये हुआ. ओके, देन इज इंडिगो बाय सत्यजीत रे. This story begins with the main character Anirudh Bose. Okay, with the main character Anirudh Bose giving the readers a self introduction. यहाँ पर खुद ही वो चीज़ बताता है, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन करता है. ही इज़ अ 29-year-old बैचलर. ही इज़ वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं. येस, नो डाउट एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम अपने सिंपल क्वेश्चन से उठ करके बाहर जाएंगे तो आई विल बी टेकिंग अप एनालिटिकल क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, जितने पॉसिबल MCQs दैट आई हैव, बिकॉज आई वर्क इन अ स्कूल, तो वहाँ पर आई हैड सो मैनी ऑफ बुक्स अवेलेबल. तो उन सबको पकड़ करके जितनी भी चीज़ें आई कैन असेंबल टू मेक अ प्रॉपर set of MCQs for you all, give reasons for you all, even important questions. I'll do all those things. ठीक. Plus I'll also be giving you a question paper, एक sample paper हम उसको भेजेंगे आपको, and I'll be giving the solution of also of that by today only. वो सैम्पल पेपर जो है वो एक्चुअली लास्ट ईयर का इम्प्रूवमेंट पेपर है. ओके, एंड दैट इम्प्रूवमेंट पेपर हैज़ मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पेपर इज़ ऑब्वियसली, भाई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा तो वी एक्सपेक्ट कि वो ऐसे होता है, बट जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा उनके लिए तो वो ऐसे ही होगा ना. तो आई विल कंसिडर कि वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो इतना ही हाई है. हेंस तो इट विल बी गिवन ऑल्सो टुडे ओनली. तो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर इट कि हाँ जो क्वेश्चन पेपर है, बिकॉज काउंसिल ने 2026 का स्पेसिमेन नहीं इशू किया है, तो पहली चीज़ आप 25 वाले स्पेसिमेन को ही कंसिडर करोगे. सेकेंडली आई विल बी इशूइंग दैट स्पेसिमेन टुडे, विल वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस इट, एंड देन you will finally be well prepared enough so that you can go for the exams. ठीक, he is now Anirudh, he is 29 years old and he works in an advertising agency who enjoys writing during work on the side. However, past few months में he has not been writing, he has been reading up about the 19th century indigo plantations in Bihar and Bengal, to the point that he may even be considered an expert. तो मतलब वो अभी लेखक है वैसे, लेकिन he is not writing, he is just reading and taking out researches from here and there कि 19th century के जो indigo plantations थे उनके बारे में. He then gives a little insight to his family background कि उसका एक old brother है who is living in London. His father was a popular physician who has passed away when Anirudh was 17. After this, Anirudh and his mother moved to his uncle's house in Bengal, where he got his bachelor's degree. Despite this, he cannot shake away some of his habits built in his early years, such as a desire to get away from city bustle. मतलब कि वो थोड़ा टाइम में उसको लगता है कि हाँ he should go and have some peace in some aside remote area जहाँ पर ये city की हसल बसल ना हो. It is because of this that he bought a car, and when his friend Pramod wrote to him, जब उसके फ्रेंड ने बोला कि चलो come and visit Dumka, he agrees. तो वहाँ पर वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है हम जाते हैं वहाँ पर. From the very beginning there were a few hitches, मतलब बहुत सारे obstacles थे जो उसके plans में आ रहे थे अनिरुद्ध के. तो it usually happens कि जब आपको बहुत सारे obstacles होते हैं तो you feel like कि नहीं मुझे ये I should not go there. ठीक है, with his neighbors stopping him to talk and ask questions, he finally managed to set off describing his journey through the cities and the clear blue sky. तो उसने anyway कोई उनके आसपास के अंकल आए थे जो उनको रोक लिए थे, तो उसके बाद he finally sets off through the city and clear blue sky से होकर के वो बाहर finally निकल आता है. जब वो अपने रास्ते में होता है उसका टायर जो है he gets punctured and he got out of the car to fix it. However, few miles later he encountered a heavy thunderstorm. तो थोड़ी देर जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा बहुत ज़्यादा भरा तूफान आ रहा है
और उसका अनदर टायर जो है वो फ्लैट हो जाता है. When the rain was pouring, there was no spare tires, the night was falling, मतलब कि रात भी होती जा रही थी. He was left in a predicament कि अब उसको करना क्या है. He was in trouble. He realizes that he had made a wrong turn, एंड उसको ने ये भी रियलाइज़ किया कि अब उसने एक गलत मोड़ भी ले लिया एंड ही इज़ रीच्ड अ डेड एंड, जहाँ पर कोई नियर बाय शॉप्स भी नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस नर्वसनेस स्टिल ही स्पॉटेड अ लाइट समवेयर टू अ डिस्टेंस, जहाँ पर एक विंडो जैसा कुछ था. तो ही टुक हिज टॉर्च, ही सेट आउट टू सी कि वहाँ पर कोई है जिससे उसको कुछ हेल्प मिल जाए. ओके, ही वॉज इन लक. एक ओल्ड मैन थे सुखन राम, हु ऑफर्ड हिम शेल्टर इन अ डार्क बंगलो एंड इवन ऑफर्ड हिम सम चपातीज ऑल्सो टू ईट. तो वहाँ पर उसको कुछ खाने को भी मिल गया और रहने को भी प्लेस मिल गई, डार्क बंगलो. अनिरुद्ध फाउंड दैट द बंगलो यूज्ड टू बी द होम ऑफ अ साहिब, जिसको हम इंडिगो प्लांटर, जो मतलब एक साहिब थे जो इंडिगो प्लांटर भी थे, और उन्हीं का ही ये घर था. घर मतलब कि वो भी वहाँ रहते थे. ये जो फैक्ट्री थी वॉज क्लोज बाय एंड बट ओनली द चिमनी रिमेन्ड स्टैंडिंग. कि उसके नियर जो बाय जो फैक्ट्री थी दैट वॉज क्लोज एंड सिर्फ वो चिमनी थी जो रिमेन स्टैंडिंग थी. ओके, दैट नाइट अनिरुद्ध वॉज अवेकन बाय द साउंड ऑफ स्क्रैचिंग. की जैसे उसको ऐसे सुनाई दिया कि डोर पे कुछ स्क्रैचेस हो रहे हैं. फ्रॉम द हाउस ही कुड टेल दैट इट वॉज अ हुंड. ठीक, अ ब्रीड ऑफ डॉग आप कह सकते हो. वेन ही रेज्ड हिज हैंड टू चेक द टाइम ऑन हिज रिस्ट वॉच, उसने जब ऐसे करके वो देखा कि भाई आधी रात में ऐसी आवाज़ आ रही है तो क्या है, तो ही रियलाइज दैट देयर वॉज इट वॉज गॉन एंड उसका सूटकेस भी वहाँ पर नहीं था. ही वंडर्ड कि क्या यहाँ पर थीव्स हैं, बट दे कुड नॉट हैव क्लाइम्ड इन थ्रू द बार्ड विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ तो बंद थे सारे साइड से. स्लोली ही स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस शॉकिंग चेंजेस. हिज हैंड्स हैड बिकम पेल, उसके हैंड्स पेल हो गए. उसकी वॉइस ऐसी लगी थी कि जैसे कोई इंग्लिश मैन बोल रहा हो. उसके क्लोथ्स भी डिफरेंट हो गए थे एंड इट वॉज द सेम जो पहले जिसकी भी यहाँ पर बात हो रही है, साहिब जो इंडिगो प्लांटर, उसके जैसे उसके क्लोथ्स हो गए थे. देन वेन ही टर्न्ड टू द रूम अगेन, उसने देखा कि उसका रूम भी कम्प्लीटली एकदम चेंज्ड है. ही वॉज वेरी डिफरेंट पर्सन इन अ प्लेस. वो उस समय पर उसका दिमाग में है कि मैं अनिरुद्ध हूँ, लेकिन बाय फेस, बाय द बॉडी, बाय द क्लोथ्स, बाय द एनवायरमेंट हियर एंड देयर ही वॉज फीलिंग लाइक कि वो एक डिफरेंट इंसान के अंदर डिफरेंट जगह पर आ गया है. ही वॉज हिज बॉडी वॉज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिम, पर उसकी कॉन्शियसनेस उसको ये याद दिलाई थी कि वो है अभी भी अनिरुद्ध ही. अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया. ही एज दो ही वर और कि वो एक इंग्लिश मैन है, तो ही रोट अ लेटर एज दो, और वो एक ऐसा मतलब लेटर लिख रहा था जैसे वो एक इंग्लिश मैन हो. ही रोट दैट इट वॉज 27th of April 1968 एंड कैसे हाउ ही डाइड नो बडी वुड मोर्न हिज लॉस बिकॉज हाउ बैडली ही हैड ट्रीटेड देम. Yet he could not resist the lure of indigo. ठीक है, तो still he could not resist जो उसका greed थी इंडिगो के लिए. He wants to be buried with his wife, son, but he worries about his wound, that is risk. For surely the people would stone him and mistreat him after his owner's passing. मतलब वो कह रहा है कि वो he wants to be buried with his wife and son. वो उन जहाँ पर दे हैव डाइड वहीं पर ही मैं भी मर जाना चाहता हूँ, इंग्लिश मैन. ठीक, लेकिन उसको ये डर है कि फिर उसके जो डॉग है, जो हूंड है, उसका क्या होगा यहाँ पर, जिसका नाम रेक्स है. ठीक है, एंड देन ही सडनली स्टॉप्ड, फिर वो सडनली रुका. ही गॉट अप, अनिरुद्ध गॉट अप, हिज माइंड वॉज हिज ओन. फिर उसके बाद स्टिल सब कुछ था वो इंग्लिश मैन का था, एवरीथिंग वॉज देयर ऑफ इंग्लिश मैन. ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ व्हेन ही रीच्ड द पिस्टल फॉर, तो उसने वो बंदूक उठाई. वेन ही कॉल्ड आउट फॉर रेस्क हिज वॉइस वॉज डीप, जब उसने रेस्क को बुलाया कि उसका डॉग कहाँ गया है, तो उसकी जो वॉइस थी वो बहुत डीप थी, एकदम इंग्लिश के जैसी. ही शॉट रेस्क डेड, उसने खुद उसको मार दिया. नॉइज कॉजिंग क्योस इन द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री. देन ही बोल्टेड द डोर एंड हेल्ड द पिस्टल इन हिज ओन ईयर. तो उसने क्या किया, उसने डोर को बंद किया एंड जो पिस्टल है उसके खुद को कान पर ऐसे करके लगाया. And then just
As suddenly as Anirudh was thrust into this memory, he was awakened from it. फिर वो suddenly उसी जो भी नींद थी जो भी थी उससे वो उठ गया. It was 28th of April, but it was a present day. Actually, it was the birthday of that particular planter, and then it can be considered कि या तो वो पूरा वो ड्रीम देख रहा था या तो उस प्लेस में वो था तो उसका जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर थी. His car had been fixed, was being offered, and he was offered. उसका कार ठीक हो गई थी, उसको टी पिलाने के लिए वो जो वहाँ का पर्सन था सुखन राम वो आया था. It was as though the wild and terrifying night had never happened. और ऐसा लगा था कि ये जो रात हो वो कभी आई ना हो. अनिरुद्ध doubts anyone would believe him. उसको ये भी डर था कि कोई उस पर विश्वास भी करेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है उसके साथ. ठीक है. This unbelievable incident took place because it was the 100th death anniversary, not birthday, of that indigo tax lords. Okay, then is there will come some soft drinks. बहुत this is very खतरनाक kind of story. ठीक है. आई वुड सजेस्ट यू चिल्ड्रेन कि इसको जो इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उससे इसको देखो, बिकॉज इफ़ आई कंसिडर ओनली अबाउट दिस स्टोरी ना, इस एक अकेली स्टोरी से आपका 80 नंबर का पेपर बन जाता है, बिकॉज सो मैनी ऑफ स्मॉल थिंग्स, सो मैनी पिक्चर्स आर देयर इन दिस. ठीक है. एंड वो आपको वहीं समझ में आएगा जो इसकी मेन स्टोरी है जो मैंने वहाँ पर पोस्ट की हुई है ऑन इन द प्ले लिस्ट ऑल्सो इट इज़ देयर, एंड चैनल पे यू कैन सर्च इट. ठीक. येस, कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डन, आप उसको भी देख सकते हो. इट इज़ अगेन इन द प्ले लिस्ट ऑफ ISC इंग्लिश लिटरेचर. Okay, in 2026 in California, a fully automated house, मतलब कि जैसे यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी सी डिवाइसेस ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ there it was fully automated house announces कि it is a time for them to wake up. Yet outside, फिर भी जो बाहर का साइड है वहाँ पर this house was empty. It was automatically made but there was no one. Breakfast is automatically made there, but वहाँ पर कोई भी नहीं होता है to eat it. Outside where the automatic sprinklers जो है they are there, a wall can be seen जहाँ पर paint has been burnt off, especially for a few silhouettes. मतलब कि वहाँ पर actually क्या हुआ था कि there was बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें जितने भी वहाँ के लोग थे वो सब दे हैड डाइड. देयर वाज अ सिलहाउट, एक जैसे कहते हैं ना एक परछाई जैसी जो एक आउटलाइन बन जाती है दीवार पे. ठीक है. तो वैसे ही करके आउटलाइन बनी हुई थी, एक मैन की एक वुमेन की डूइंग हार्ड वर्क एंड अ बॉय एंड गर्ल थ्रोइंग अ बॉल. द रेस्ट ऑफ द नेबरहुड इज़ चार्ड एंड फ्लैटेंड. और जो बाकी नेबरहुड था वो ऑलरेडी पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म तहस नहस हो चुका था. एंड द रेडियो एक्टिव ग्लो हैंग्स ओवर द सिटी. एंड देयर वाज अ रेडियो एक्टिव ग्लो जो सिटी पर था जस्ट बिकॉज कि देयर वाज अ वॉर दैट हैड एंडेड अप और उसने सब कुछ जला दिया था इधर उधर. द डॉग एंटर्स द हाउस कवर्ड sword with swords and he also dies. जो रोबोटिक माइस है, नॉट असली वाला रोबोटिक माइस, द डॉग वॉज असली, द लाइफ ह्यूमन बींग जैसे होते हैं वैसे कि ही वॉज ऑल्सो अ लिविंग बींग, बट यहाँ पर जो रोबोटिक माइस है ही ऑटोमेटिकली क्लीन्स द हाउस, टेक्स द डॉग अवे इनटू इंसिनेटर्स. As evening comes, the house automatically reads a woman's favorite poem, that is, There Will Come Soft Rains. The poem describes it how once man is utterly destroyed because of war, nature will go on without man as if nothing had happened. People will come, they will fight, they will go, the war, the futility of war, the uselessness of war is being shown here. ठीक, it will come, it will go, but nature अपना काम हमेशा करती रहेगी. Later that night बहुत ज़ोर से हवा चली, तो there was a wind that due to which a tree bough falls on the house causing a fire. एक वहाँ पर फिर वहीं पर ही उससे थोड़ी सी आग जली. आग में वो जितना भी हाउस था फ्रॉम द किचन साइड इट स्टार्टेड एंड एवरीथिंग वॉज बर्नट अप एक्सेप्ट वन वॉल. देयर विल कम, तो हेंस एवरीथिंग वॉज ओवर. देयर विल कम सॉफ्ट रेन, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, दिस डिपिक्ट्स द पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड
वेयर अ ऑटोमेटेड हाउस कंटिन्यूज इट्स डेली रूटीन, मतलब कि आफ्टर द वॉर हैज़ टेकन प्लेस, उसके बाद जो हाउस है वो अभी भी अपनी जो यूजुअल रूटीन है उस पर वो चल रहा है. एंड आफ्टर द न्यूक्लियर अटैक हैज़ वाइप्ड आउट ह्यूमैनिटी, highlights the themes of technology, nature and the futility of human endeavors. मतलब कि जो people लड़ाई झगड़ा करते हैं उसके बाद these things happen. Okay, then next is the medicine bag, another lovely kind of story for you all. ठीक है. Now again I would request you, मेडिसिन बैग ऐसे तो बहुत अच्छी स्टोरी है, नो डाउट, बट इट इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन. इसका कुछ लास्ट का पैराग्राफ्स है ना, जिसमें वो जो ग्रैंड फादर होता है वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है उसको, अपने सन को, जो ग्रैंड सन होता है उसको. ठीक, जब वो उसको मेडिसिन बैग हैंड ओवर करता है, तो वो जो सेक्शन है मेडिसिन बैग के पार्ट्स में देख लेना. ठीक, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वहाँ पर ना वो, व्हेन आई स्टिल रिमेंबर कि जब भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ इधर उधर से गैदर की थी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग टोल्ड, बिकॉज मैंने भी तो ये स्टोरी पढ़ी ही है ना फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो बहुत सारा वीडियोज़ मैंने गैदर की थी टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ दो दैट पार्ट. तो उसको यू कैन, क्योंकि हेयर आई हैव नॉट टेकन अप दो एनी पिक्चर्स हेयर. ठीक है, वो सारी मैंने जो उनके मेन वीडियोज़ हैं उसी में लिए. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि देयर विल कम सॉफ्ट रेंज प्लस मेडिसिन बैग, उसको पर्सनली वहीं से ही देखो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन. आधी स्टोरी समझ में आ गई तो जो पार्ट नहीं समझ में आए उतना यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो, एंड डॉक्यूमेंट्स आर गिवन ऑन द टेलीग्राम. Okay, this story that is about a teenage boy Martin and his relationship with his grandfather who belongs to Native American land of South Dakota. ठीक, तो ये उन दोनों की स्टोरी है. They have hailing from a mixed heritage. Martin is conscious about his grandfather's unexpected visit. क्यों? क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ना सडनली उसके घर पर आ जाते हैं. ऐसे तो दे यूज टू गो टू ग्रैंडफादर्स हाउस, बट इस बार ग्रैंडफादर सडनली उसके घर आ जाते हैं. एंड उसको ये चीज़ का डर लगता है कि कहीं जो उसकी द फियर्स द ऑब्लिवियन ऑफ द फैंटास्टिकल image surrounding the old man that he otherwise shares with his friends after every summer visit, कि वो एक जो imaginary image मार्टिन ने बताई है अपने ग्रैंडफादर की, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है what he actually is. ठीक, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रियलिटी विद द फिक्शन थ्रेटन्स हिज रेप्यूटेशन. और उसको बड़ा डर लगता है कि अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसे दिखते हैं तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे. ही अडॉप्ट ऑल द मीन्स कि अपने फ्रेंड्स को वो मना करे कि वो उससे ना मिल पाए. बट एक दिन उसके फ्रेंड जो है वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोहेर्स देयर वे इनटू हिज हाउस, वो उसके घर में आ ही जाते हैं. वो उसके फादर से, ग्रैंडफादर से मिल लेते हैं एंड दे फाइंड हिम वेरी चार्मिंग एंड नथिंग लेस दैन एन एग्जॉटिक साइड. मतलब कि दैट इज़ वेरी fascinating for their friends also. Following the pleasant meeting, after this lovely meeting, grandfather reveals to Martin his knowledge of the latter's anxiety and the embarrassment over the visit. मतलब कि उसके ठीक उसके बाद भी grandfather accepts कि हाँ ठीक है, I understood कि हाँ तुम थोड़ा embarrassed feel कर रहे होते. He further familiarizes a young boy with the mythical ancestry and the past to convey the emotional significance of the medicine bag that has been around his neck for years. कि ये जो medicine bag उसने around his shoulders पहना हुआ है उसे, ठीक, तो उसको hand over करना उसको, और इसकी जो significance है वो क्या है, that he has to tell since he is approaching the end of his life. Just because कि he is approaching the end of his life, the grandfather desires to pass on the medicine bag to the rightful male heir. And the story ends with Martin where, क्योंकि finally अब ऐसा लगा था कि Martin has started understanding plus respecting the concept of that medicine bag जो उस इनके एंसेस्टर्स से चलता आ रहा है. और ग्रैंडफादर ने वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो कहाँ कहाँ से ली हैं, क्या क्या उसने मार्टिन को बताया कि हाँ ठीक है ये चीज़ें इसमें हैं.
ठीक है, वेयरिंग द बैग आफ्टर द ग्रैंड फादर्स डेथ, thus accepting his mixed identity with love and respect. So eventually the bag was handed over to Martin, who understood the entire story of why this medicine bag is being handed over. तो वो जितना भी concept है वो आपको वहीं से you have to study, because वहाँ पर it will be given in detail to you all. And हो सकता है कि काउंसिल आपसे वही एक क्वेश्चन पूछ रहे मेडिसिन बैग का, क्योंकि उसमें सम पहाड़ वाला एरिया एंड दे हैव गॉन समवेयर, और उसके बाद वहाँ से उसने कहाँ से क्या क्या प्लांट्स बटोर करके उसके बाद उसने वो मेडिसिन बैग बनाया, ये सारी चीज़ें आपको उसी में ही मिलेंगी. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज़. थैंक यू.